औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शायद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बेशुर के सच्चाई सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाले दिन की दुआ में सुनामी इसी दुआ के साथ। तो जी मैं विकी चीमा ने यहाँ जो एक गेम खेली थी और वो बता रहे थे जी ये हो गया वो हो गया, तो उस सारे का भांडा फोड़ा है उनकी वालदा साहबा ने। ज़रा मैं आपको उनकी सुनाऊंगी बातें, फिर उस पर करेंगे तबसरा कि क्या ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਸੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਿਓ ਕਿ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 30 ਜੂਨ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜੀ, ਸਮਝਾ ਛੜੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਪੰਨਾ ਖਾਖਾਂ, ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਤੇ ਭੰਨ ਖਾਖਾਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾ ਵਡਿਆਈ ਜਾਓ ਤੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਕਰ ਅਮੀ ਜੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਈ ਉਹ ਕੱਖ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੋਗੇ। ਮਾਂ ਠੁੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ ਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਈ ਵੀ ਠੁੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੁੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਆ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਅਸਲ ਵੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ। ਬੱਚੀ ਏ, ਮਾਂ ਜੰਮਦੀ ਏ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੇ ਦਾ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਕਾਲਰ ਪੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ 16 18 ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਰਾਂਦੀ ਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਪਾ ਛੱਡਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਰਨੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਧੀਏ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪਾਲਦੀ ਏ ਤੇ ਵਕਤ ਅਗਲੇ ਘਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਾਂ ਨੇਕੀ ਕੋਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਧੀਏ ਭਾਂਡਾ ਧੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈ ਪਾਈ, ਧੀਏ ਉਤੋਂ ਕੱਜ ਛੜੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੱਸ ਆਂਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਹੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਪੜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨੋ ਧੀਓ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹੋਗੀਆਂ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਵੀ ਆ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਵੀ ਆ, ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਦੈਨ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਦੈਨ ਤੇ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਦੈਨ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰਦੀ। ਮਕਸਦ ਸ਼ਦੈਨ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਦਾਦੋ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਹੈ ਨਾਨੋ ਡਾਕੂ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਚਾਹ ਕਰ ਲੈਨੇ ਅੰਮੀ ਕੱਢ ਕਾਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਪੈਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਹੈਦਰ ਫਲਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਇਆ ਵੇ ਜਵਾਬ ਫਟਾਫਟ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਲਾਦ ਜਿਸ ਜੰਮੀ ਸਿਆਣੀ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਜੰਮ ਚੜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੋ ਉਹ ਹੀ ਲਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੋ ਉਹ ही लाल। तो जी उनकी वालदा साहबा की सुन ले बातें, तो ये दोनों भाई माँ जी को बिठा के सिर्फ बातें करवाते। इनको ये नहीं पता होता ये बातें इनके फ़ायदे में जा रही है या जा रही है इनके नुकसान में। तो वो कितना तपी पड़ी हैं अपनी बहुओं पे, क्योंकि बेटी तो उनकी है कोई नहीं, तो बहू ही है ना। तो वो किस तरह मतलब कि अपने बेटों को भी आज उन्होंने ना चीथड़े उड़ाए हैं बीच में बेटों के और बहुओं के। और ज़्यादा लोग तो कह रहे हैं ये जो इधर बेटा है उसकी 2 शादियाँ, क्योंकि अभी इन लोगों ने तो बताया कोई नहीं हुआ। तो उधर जो है वो एक है, और वो उस वक्त वो खिदमत गुजारी दिखाते थे क्योंकि काम वालियाँ रखी हुई हैं। ये तो कोई नहीं है कि सारा काम बहू को करना पड़ता। और इतने अमीर तरीन बंदा है माशाल्लाह, जिस तरह भाई ने कहा था वो तो अरबों खरबों पति है और वो तो सोने के चम्मच लेके मुँह में पैदा हुआ है। उसको ये यूट्यूब चैनलों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर देख लेना। तो हालांकि ऐसा जब कोई माँ या बाप अगर नहीं भी कमा रहा ना, तो फिर भी वो ज़िम्मेदारी औलाद पे होती है। कहते हैं ना कि वो जो लड़कियां कहती है ना
ससुराल की कोई जिम्मेदारी हम पे नहीं है, ये वो तो कहते हैं ज़रा अपनी भाभीियों को भी ये सबक पढ़ा दो कि उनके ससुराल भी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब फिर हम करते हैं तो हम कहते हैं जायज़ है, जब हमारी भाभीयाँ वो काम करती तो हम कहते हैं नाजायज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देख लें इधर, फिर जो कमाने वाली सास हो जो आपके बेटे से भी ज़्यादा कमा के दे रही हो, तो मेरे ख्याल में वो तो आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहिए था। लेकिन जी और माँ जिसके को नाम पे चैनल हो, हाँ, तो माँ को भी, माँ ये नहीं है कि सिर्फ चैनल पे, माँ इसके साथ टिकटॉक पे बड़ा बैठी है। हालांकि अगर जो देखा जाए तो लोग दूसरों को मना करते हैं ना, लेकिन उस वक्त जब ये माँ के साथ बैठता था ना टिकटॉक पे, तो एक अच्छा काम कर रहा होता था। मैंने इसको थोड़ा सा देखा, लोग बड़ा प्यार करते थे। ये अपनी अम्मा जी को मतलब वीडियो के बारे में लोगों ने पूछना, बातें करनी, दुआएं खैर करवाना, ये वो। तो एक बार किसी ने आके कलाम पढ़ा था और इसने उसको 4-5 मिनट दिए और बड़ा इसने एहसान किया था कि जी तुसी बड़ा अच्छा पढ़िया, तो मैं तुहानू इन्ना को टाइम दे दिता, नहीं तो इन्ना कदी असीं टाइम ना किसी नू दिता नहीं गा। लेकिन अब देख लेना, फिर इसीलिए छितरौल होना शुरू हो गई है ना कि उधर ये दिखा रहा है मुल्क के हालात इतने ख़राब है, ये है वो है। हाँ, मुझे बताए, मैं अपनी अम्मा जी को लेके आऊँ कि ना हो, तो वो इन्हीं के इलाके की जो है हमारी सोनू की दुनिया, उन्होंने फिर वो खूब इनके निकाल के वो लगाई हैं टिकटॉक पे, जहाँ ये बैठ के मस्तियाँ कर रहे हैं औरतों के साथ। तो ये है बेगैरतियाँ, अपने घर की औरतों को छुपा लेना और दूसरों के घरों की औरतों से मस्तियाँ करना है, तो वो भी बड़ी, सबसे बड़ी बेगैरत जो खुद आके करती हैं। यही हाल था रजब का, वो भी कहता था कि मेरी बीवी ना आए, बाकी मैं सारे ज़माने की औरतों के साथ जो मर्जी करता रहूं। तो फिर भी चलें, थोड़ी गैरत तो होती है ना कि अपनी बीवियों को नहीं लाना चाह रहे। तो ये तो बात करें आप भी कि ये तो फिर अगली औरतों को गैरत करनी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसी बात है। जब आप आपके घर की नहीं आ रही और वो बंदा, वही बंदा अपने दूसरे कुलीग्स को या बाहर की इधर उधर की औरतों को लेके आ रहा है, उनके साथ खुले मजाक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जैसे इनका एक वायरल हुआ था, हाँ जी, मामा यांडा के साथ करते थे, या वो लड़की के साथ भी इनका वायरल हुआ था। फूल दिए जी, फूल दिए दिलाए गए हैं और उसका खेतों में जाके फोटो शूट करवाया गया। तो फिर औरतों को थोड़ी सी शर्म हया कर लेनी चाहिए कि अगर इनकी बीवियाँ इतनी बापर्दा है और अपने आप को संभाल के रखने वाली हैं, तो हम इनके साथ क्यों आए। बिल्कुल, अगर मतलब एक बंदा हो ना, उसकी बीवी भी आ रही, बच्चे भी आ रहे, उनके साथ आ जाए तो चलो जी, समझ आ रही। एक बंदा अपनी बीवी का हाथ तक नहीं दिखा रहा, तो वो आपको दिखा के पैसे कमा रहा है, तो मुझे तो लगता है कि ये गलत बात है। तो जो अपने घर में मुलाजमा थी उनको भी तो ऐसे ही दिखाया गया था। उनको भी बेचारियों को ना उनका कभी जिस्म देखा जाता था, ना कभी उनके बाल, जो भी है, जिस तरह भी वो नाच रही हैं, जो भी कर रही हैं, ये दिखा रहे हैं। तो अपने चैनल को अपने हिसाब से बंदे को चलाना चाहिए। लेकिन ये है कि अब फिर जो है कि बीवी ने इजाज़त दे रही, तो इसलिए पूछा जा रहा है। नहीं तो माँ बाप आपका है, सबसे पहले आपको अपने बच्चों की, बीवी की सेफ्टी चाहिए। जब आपकी बीवी और बच्चे रह रहे हैं, तो फिर आप माँ जी के लिए इतनी कौन सी, या बाप के लिए इतना कौन सा आपको मतलब हुआ पड़ा है कि जी आपने भागना था, है दौड़ लगानी थी कि जिस पे उनसे दौड़ा नहीं जाना था। करें बात आप इस पे, उन्होंने भी तो जहाज में बैठ के आ जाना है ना। बिल्कुल, और वही जहाँ पे सेफ्टी नहीं, वहीं पे उन्होंने भी रहना है। उन्होंने, उनको कौन सा आपने जंगल में छोड़ देना है। बिल्कुल, उन्होंने भी आपके साथ ही रहना। अगर आपके लिए वो जगह सेव है, तो आपके माँ बाप के लिए भी सेव है। अगर नहीं तो आप अपने बीवी बच्चों को भी पीछे भेजते ना वापस, और कहते कि ये अब कंट्री सेव नहीं रह गई, तो मैं अपने बीवी बच्चों को वापस भेजो। अम्मा, जब मैं इनको बुलाऊंगा तो साथ में तुम्हें भी बुला लूंगा। या पहले ही उसको लारा नहीं लगाना चाहिए था। मैं देख रही थी टिकट भी करवाई हुई है, टिकट भी करवाई हुई है। वो तकरीबन 5 से 6 किलो ना हाथ की सुइयां बना के बैठी हुई थी और एक तोड़े में डाल रही थी। तो वो बड़ा बेटा है कि छोटा, ये नहीं मुझे पता, बड़ा ही है। क्या ये सबसे बड़ा कहती है ना, साधन मैंने है। उधर लेके जानी और जो बाकी बचेंगे वो तुम लोग ले लेना, तुम लोग के लिए छोड़ के चले जाऊंगे। और ये तोड़े में इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें गिरेंगी ही नहीं है। तो वो इसलिए कैसे तो उनको बेचारी गुस्सा है। तैयारियां कर रही हैं, हाँ जी, और आप वहाँ पे बैठ के फिल्में चला रहे हैं उनकी। तो इसलिए गुस्सा है। तो वो इतना बोली है ना, वो इतना फिर बोली है ना, आज फिर उन्होंने अपने बेटों को भी बीच में ही रोंदा है और बहुओं को तो फिर रोंदना ही था ना। जब अपने बेटों से फिर ना रहे तो फिर बहुएं क्या होती हैं। लोग तो फिर इसलिए पोते पोतियों को भी भूल जाते हैं। तो ये नहीं है कि बहुओं की वजह से नहीं, जब आपका बेटा प्यार कर रहा होता है ना, जब बेटी की वजह से आप बहू को, दामाद को बर्दाश्त करते हैं ना, तो अगर आपका बेटा फर्मा बरदार अच्छा है ना, तो बहू जैसी भी है फिर बड़े कहते हैं कोई बात नहीं है, बेटा तो हमारे साथ अच्छा है ना, ये अच्छी है या नहीं है कोई बात नहीं है। तो फिर बाज़ ऐसा होता है जब बेटा अच्छा ना हो तो फिर बहू क्या आगे उसके बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। तो आज फिर उन्होंने पंजाबी उर्दू इकट्ठी करके वो सुनाई है ना कि जो ना सुनाने वाली। तो मैंने कहा लो भाई, विक्की चीमा साहब का
कहते हैं माँ ना- ने छतरोल कर दी। हाँ जी, क्या कहते हैं, लोगों ने क्या कर सॉफ्टवेयर दिया, अपडेट क्या होना। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, लोग तो कर ही तो कर रहे थे, माँ ने भी लिखा इसका तो पहले लोगों ने किया ना, जो एक दिन और वीडियो बनाई है, दूसरे दिन फौरन से पहले दूसरी वीडियो बना दी एक पे। फिर वो एक पाकिस्तानी और थे टिकटॉकर, जिन्होंने फिर वो बातें सारी लगाई हैं कि कोई ऐसा सीन नहीं, आप कोई भी आके साउथ अफ्रीका में अच्छे तरीके से रह सकता है, अपना बिजनेस जो भी कर सकता है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो फिर भाई साहब ने अगले दिन और वीडियो डाली, तो इधर जो बड़े भाई साहब से उन्होंने वो छिद्रोल करवाई ना, अंदर खाते वो पता नहीं कितना दुखी है, नहीं तो माँ से ऐसी बातें ना करवाता, अगर कर ली थी तो लगाता ना। लगाता। तो लेकिन ये है जी हमारे यूट्यूबर, वो देखते हैं ना, कहते हैं वो इज्जत मंतशावत जिलो मंतशावत, जिसे चाहे इज्जत दे जिसे चाहे जिल्लत दे। तो फिर हम लोग का दारोमदार नियतों पे है, फिर उतनी देर ही आपको इज्जत मिलती है, और जिल्लत फिर जब मिलना शुरू हो जाती है जब आपकी नियतों में फतूर आ जाता है। तो मतलब ऑडियंस क्यों आपका फैसला करेगी कि आप अपने माँ बाप को कहाँ रखे कहाँ ना रखे। वो ऑडियंस की माँ है, वो आपकी माँ है, और आप सबसे ज़्यादा बेस्ट जानते हो। और बीवी कितनी कुछ समझदार है, बच्चे जो मर्जी कर रहे हो वो वीडियो बना रही होती है। उस दिन ये बात इसने अपनी कंटिन्यू रखी है, पढ़ा लिखा बंदा, इंग्लिश बोल, ये कर वो कर, और ये बेटी का कमीज उठा के नोजी साफ कर रहा है, हर बंदे ने वो उठा के लगाई है कि बेटी का पूरा फ्रॉक ऊपर, बेशक छोटी बच्ची है बड़ी है, तो वो जी आराम से वो नोजी साफ कर रहा है, और बेगम जो वीडियो बना के अपलोड कर रही है। उधर आपने देखा जब बच्ची लेटी हुई थी या जो भी है, फिर लोगों ने वो चीज़ें उठा के लगाई। फिर लोग मना करते हैं जी आप लगाते क्यों ये, तो देखें जिसका चैनल है, जो खुद ये हरकतें कर रहे हैं, माँ वीडियो बना रही है, वो अपलोड जब करती है वो देखती नहीं है, तो फिर लोग कौन हैं जो आपकी रिस्पेक्ट रखेंगे या करेंगे, फिर जब उनको आपकी बातों से इख्तलाफ भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। फिर अल्लाह ताला ऐसे भांडे फोड़ता है और सारा कुछ बाहर आता है, नहीं तो घर की बातों का किसी को क्या पता चलना था कि इनकी अम्मा इनसे नाराज़ है। जिस तरह दिखाया जाता है पाँव में गिरना, माँ के कदम चूमना, लोग कहते हैं जी सजदा किया, इस पर काफ़ी लोगों ने तनकीद की, ये वो। तो जब वो दिखाया जा रहा था तो ये था, जब अंदर खाते कुछ और दिखाया गया तो वो भी सामने आ गया। तो ये है मेरा रब, वही पर्दे रखता है और वही पर्दे फाड़ के बाहर सारा कुछ निकालता है, ऐसे ही होता है ना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा आप हमें भी दुआ में याद, आप हमारी दुआ में तुम्हारे साथ होते जी। अल्लाह हाफिज़।